Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in course compiler construction. Today's topic is lexical analyzer generator, and the main topic that we will discuss is about to convert NFA into DFA. So simply, lexical analyzer generator in total is a process to convert a regular expression into NFA and then NFA into DFA. So first part of it we have just discussed how to convert regular expression into NFA. So now today we will discuss NFA to DFA conversion. Simply, this is the Thomson construction algorithm. The main topics that we will discuss today are the lexical analyzer generator design and simply the definitions of NFA and DFA, and then we will have to apply the algorithm, the subset construction algorithm, and we will use a simple example to do this task. Then simulate a DFA कि किस तरह से हमारे पास एक DFA की सिमुलेशन हम कर पाएंगे और फर्दर जो है हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनकी हेल्प से इस कंसेप्ट को देखेंगे। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। All the previous topics have been discussed. Now it's time to discuss the design of a lexical analyzer and especially to convert NFA to DFA part. Okay, so the subset construction algorithm in general. So this has been already discussed earlier that the design of a lexical analyzer generator consists of two type of conversion. First of all, to take regular expression and to convert it into NFA, and then take that particular NFA and to convert it into deterministic finite automata, the DFA. Oh, okay. So this is the non-deterministic finite automata, and this is the five tuple as we know it very well. In previous lecture, we have already discussed about it that S, capital S, alphabet, transition, S naught, and F. These are five different elements or components which consists of NFA, and these are the known as the five tuple or quintuple. So S representing here the finite set of states, total number of states जो हम यूज करेंगे एक particular machine के अंदर NFA की उसको हम capital S के साथ represent करते हैं। Input alphabet is a finite set of input symbol alphabets हैं इसमें, और इसी तरह ट्रांजिशन की बात करें तो ये एक मैपिंग है S इंटू अल्फ़ाबेट की के स्टेट्स में से कोई आपको एक स्टेट मिलती है और उसके ऊपर कोई इनपुट लेटर को यूज करते हुए आप कोई ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स की तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। मीन सेट ऑफ स्टेट्स जो है पार्टिकुलरली आपको इन रिजल्ट मिल सकती है। तो S naught, this is the start state and F representing the final states। तो इसके बारे में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स पे और स्टिल अभी इसी लेक्चर नंबर 12 के अंदर भी आप इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो हम कर चुके हैं। और इसी तरह करस्पॉन्डिंगली हमने ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल के ऊपर भी बात की थी। एंड NFA कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेबल डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड द ट्रांजिशन डायग्राम। Transition graph, as you can see here, we have total 4 states here 0 1 2 3 और इसके ऊपर different transitions जो है movement जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक particular state पे particular input letter को read करने पे कौन सी states के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। और इस टेबल की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें कुछ आपको जो सेल्स हैं वो ब्लैंक नजर आ रहे हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो more than 1 वैल्यू के साथ populated हैं। So this is the possibility of non-deterministic finite automata only. In deterministic finite automata हम किसी भी एंट्री को more than 1 लेटर यहाँ पे या स्टेट नंबर नहीं लिख सकते और किसी भी एंट्री को हम यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो लेकिन यहाँ पे NFA जो है उसमें ये तमाम पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल है। So according to the definition of transition graph, simply non-deterministic finite automata, we have different states, the input letter, the start state and the final state as you see here in the transition graph. Okay, so comparatively we have the deterministic finite automata, कुछ चीजें जो हम NFA के अंदर हमने विजिट की हैं, देखी हैं, ऑब्जर्व किया है उनको, हम उनको DFA के अंदर जो है कंपैरेटिवली अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है एक स्पेशल केस है हमारे पास एनएफए का। किस तरह से इसमें किसी भी स्टेट को आप एम्प्टी ट्रांजिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी फ्रॉम वन स्टेट टू मूव टू अनदर स्टेट यू नीड सम टाइप ऑफ इनपुट लेटर, कि आप किसी लेटर को रीड करते हुए एक स्टेट से दूसरी पे जा सकते हैं। कभी भी एम्प्टी ट्रांजिशन को यूज करते हुए आप जो मूवमेंट है वो पॉसिबल डीएफए के अंदर नहीं है। इसी तरह फॉर ईच स्टेट एस एंड इनपुट सिंबल ए, कि अगर किसी स्टेट पे आपको कोई इनपुट लेटर मिलता है देन देयर इज एट मोस्ट वन एच लेबल्ड ए लिविंग एस, तो आप उस स्टेट पे एक एच जो है वो उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टेट, स्टेट ए एंड बी, and at state A if you read letter 1 then it mean 1 can give you only one transition, अब उसकी एक ही आउटगोइंग हो सकती है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिले कि कोई स्टेट एम्प्टी ट्रांजिशन की वाली नहीं, कोई भी ट्रांजिशन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ लेबल नहीं हो सकती डीएफए के अंदर। और नंबर 2 कि आपको एक स्टेट पे एक पार्टिकुलर इनपुट लेटर लेने पे एक यूनिक ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ईच एंट्री इन द ट्रांजिशन टेबल इज अ सिंगल स्टेट, और आपके टेबल में हर एंट्री जो है वो एक सिंगल स्टेट होगी। जिस तरह आप एनएफए में यहाँ पे आप डुअल स्टेट देख रहे हैं और 2 स्टेट्स हैं, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास डीएफए में नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो है at each entry in the transition table is a single state, so at most one path exists to accept a string। हमने एनएफए के अंदर ये बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक ही स्ट्रिंग जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पॉसिबल है कि 10 डिफरेंट वेज ऐसे हैं जिसके थ्रू अगर स्ट्रिंग को रन करें तो वो रिजेक्ट होगी, लेकिन एक पार्टिकुलर पैटर्न अगर आप उसी के ऊपर स्ट्रिंग का चलाएं तो वो उसी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है। सो इट मीन definitely whenever you have some path from initial to final state then it means your particular string will be accepted on that particular machine. So this is the way we are saying that at most one path exists to accept a string. So simply point number 2 to simulate algorithm is simple। इसका जब simulation algorithm हम बनाएंगे वो comparatively simple होगा। ये कैसे बन सकता है इसको हम देखते हैं। So simply we are interested to convert NFA into a DFA, so this is the conversion algorithm। So subset construction algorithm is used to convert NFA into the DFA। So how to convert by using subset construction algorithm NFA into a DFA? 3 चीजें आपको यहाँ पे 3 बुनियादी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। S simple S representing the state, so apply empty closure on that state। So second one, apply empty closure on set of states, capital T representing the set of states। Okay, third one is to represent a simple transition, apply move on just a set of states by using the some label A। So these are the actually the behavior that will be performed। So empty closure of S की अगर बात करें तो S represent करता है आपके पास किसी particular state पे, और यानी कि जब आप किसी स्टेट पे empty closure को रीड करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, आपको क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि S state will be union with T such that T will be some type of input such that S can belong to empty string to till up to T। तो आपके पास बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर आप एम्प्टी क्लोजर को अप्लाई करेंगे और आप उनको विजिट कर सकेंगे। ये हम देखेंगे कि किस तरह से एक पार्टिकुलर स्टेट पे जब हम एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करते हैं तो किन किन स्टेट्स पे और आप एम्प्टी क्लोजर की जो है लेबल को यूज करते हुए आप अपनी जो एनएफए है उसके अंदर मूव कर पाएंगे। इसी तरह एम्प्टी क्लोजर ऑफ टी इट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ एस बिलोंग्स टू टी, कि आपकी जो एक स्टेट है वो आपकी सेट ऑफ स्टेट से बिलोंग करेगी और आप उसमें जो है वो एम्प्टी क्लोजर ऑफ एस जो है वो शामिल करेंगे, यानी कि एस नंबर ऑफ एस जो कि पार्टिकुलर स्टेट है उस पर जब आप एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू जो है फिर आप
अपनी सेट स्टेट जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स में से उसको फाइंड करेंगे। ये क्या अगेन कैसे पॉसिबल है? ये वेरी सिंपल है, इसको हम जस्ट एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। And this is the third one, move t comma a, t, this is representing some type of label and such that s belongs to a t and s belongs to t। तो इसको भी हम just now अभी देख लेते हैं ये क्या है, इसकी explanation हम इसको practice करेंगे। So the algorithm produces two things, one is d state and other one is d transition। तो ये नंबर वन डी स्टेट्स इज द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ द न्यू डीएफए कंसिस्टिंग ऑफ सेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द एनएफए। कि हम जिस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे उस एनएफए की कुछ स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग हम डीएफए की एक स्टेट बनाएंगे। तो हम उस जो एनएफए की बेसिस पे डीएफए की स्टेट्स जनरेट होंगी हम उनको डी स्टेट्स का नाम देंगे। और डी ट्रांजिशन क्या होगा? कंफर्म बात है कि ये कोई टेबल होगा, इट इज द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द न्यू डीएफए, कि जो स्टेट्स हम डीएफए की न्यू बनाएंगे उनको डिजाइन करेंगे, उनको इन फ्रंट लेके आएंगे, उनकी बेसिस पे हम उसका एक टेबल बनाएंगे। ये तमाम चीजें कैसे पॉसिबल है इसको हम देखेंगे विद एग्जांपल। हमने अपने इन तीन फंक्शंस को जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं हमने इसकी बात की है। empty closure of S, it means set of NFA states reachable from NFA state S on empty transition alone। ये मैंने आपको यही बात बताई थी कि किस तरह से NFA में हम जो है वो empty किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए empty transition को यूज कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर स्टेट S पे जब हम empty closure अप्लाई करेंगे तो हम अपनी एनएफए के अंदर किन किन स्टेट्स को विजिट कर पाएंगे और किन किन स्टेट्स के ऊपर हम एम्प्टी ट्रांजिशन को यूज करते हुए जा सकेंगे। एम्प्टी क्लोजर ऑफ टी, इस ऑपरेशन में क्या होगा कि सेट ऑफ एनएफए स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम सम एनएफए स्टेट एस इन सेट टी, के वही ऑपरेशन है लेकिन अब कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि तमाम जो सेट है स्टेट्स का जो सेट है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि on empty transitions alone, कि empty transition की बेसिस पे हम किन किन में मूव कर सकते हैं। so it will be union S in T, कि आप एक स्टेट को उठा के अपने सेट ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है वो चेक करेंगे और सिंपली प्रोसेस वही होगा कि empty closure of S जो है उसको आप एक्चुअली चेक करेंगे कि स्टेट के ऊपर empty closure की ट्रांजिशन आप देखेंगे। तीसरे नंबर पे सिंपल ऑपरेशन है मूव टी कोमा ए, सेट ऑफ एनएफए स्टेट्स टू विच देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन इनपुट सिंबल ए। ऊपर हम बात कर रहे थे एम्प्टी क्लोजर की, अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकुलर लेबल ए जब हमें मिलेगा तो हम एस की बेस पे मीन सेट ऑफ स्टेट्स में से किन स्टेट्स के ऊपर जा सकेंगे जब हमें ये लेबल मिलेगा। सो सेट ऑफ एनएफए स्टेट्स टू विच देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन इनपुट सिंबल ए फ्रॉम सम स्टेट्स एस इन टी, के जब हम सेट ऑफ स्टेट्स में से एक पार्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे और एक पार्टिकुलर लेटर की बात करेंगे तो उनकी बेसिस पे हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकेंगी। सो बेसिकली दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ ऑन एनएफए स्टेट्स। कैसे पॉसिबल है हम इनको देखते हैं। So उससे पहले DFA एक FA है with following restrictions. We have just studied about that. The empty moves are not allowed in DFA. And for every state S belongs to capital S means set of states, there is one and only one path from S for every input symbol A belongs to input symbol. So since transition tables don't have any alternation options, DFA are easily simulated by an algorithm. तो इसको बनाना हमारे लिए comparatively थोड़ा सा आसान है। हम दोनों को इन कंपैरिजन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा टास्क भी यही है कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग दोनों की जो है एनएफए की कुछ सिमुलेशंस कैसे हैं, डीएफए की सिमुलेशंस कैसे हैं और डिफरेंसेस इन दोनों के क्या है, कंपैरेटिवली हम इन दोनों को कैसे देख सकते हैं। इनका नॉलेज अगर हमारे पास होगा तो हम इजीली जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। Simple algorithm is that to simulate a DFA. So input is an input string X terminated by an end of the file character EOF, a DFAD with start state S naught accepting states F and transition function move। ये तो हम जानते हैं
कि डीएफए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं बहुत सारी हो सकती हैं, उनमें से हम कह रहे हैं कि हम एस नॉट को इनिशियल, एफ को फाइनल और जो मूव होगा उसको हम मूव के साथ मीन ट्रांजिशन को लेबल करेंगे और डीएफए का नाम हम डी रखेंगे। तो आपने क्या करना है, अब इस डीएफए की सिमुलेशन जो है वो करके बतानी है। सो एन इनपुट स्ट्रिंग एक्स टर्मिनेटेड बाय एन एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर यूर। अब इसका आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट ये है कि आंसर इज यस इफ डी एक्सेप्ट्स एक्स नो अदरवाइज। कि इस डीएफए के ऊपर जब एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को आप चलाएंगे तो आपको आंसर यस मिलेगा अगर आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग इस पे एक्सेप्ट होती है, आपको आंसर नो मिलेगा अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती। सो हाउ टू डू दैट ऑपरेशन, मेथड इज सिंपल, अप्लाई द एल्गोरिथम इन फिगर 3.27। अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे एल्गोरिथम की भी हमने बात की है, उसको अपनी इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे। फंक्शन मूव एस कॉमा सी गिव्स द स्टेट व्हिच देयर इज एन एज फ्रॉम स्टेट एस ऑन इनपुट सी। के हम उसमें क्या करेंगे कि स्टेट एस के ऊपर इनपुट कैरेक्टर सी को चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो द फंक्शन नेक्स्ट चार रिटर्न द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एक्स। अब ये सारा जो प्रोसीजर है या मेथड आपको बताया जा रहा है, इसका एल्गोरिदम जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी ये सिमुलेशन वे जो है वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। इसमें हम आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट होगी एस नॉट उसको असाइन कर देंगे एस को, मीन उसको असाइन कर देंगे, उसको एलोकेट कर देंगे एस को, और नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा हमारे पास एक वेरिएबल होगा जो कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा, हम उसकी वैल्यू जो है वो सी को देंगे। तो इनिशियली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमने ये बात की है कि स्टेट एस होगी और उसके ऊपर इनपुट कैरेक्टर जो है वो सी होगा जिसको हम रीड करेंगे। So simply, so while C not equal to EOF end of file, जब तक आपके पास कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं होता, यानी कि आप एक एक कैरेक्टर जो है वो उसको रीड करते चले जाएंगे, तब तक आपने क्या करना है, आप मूव या ट्रांजिशन परफॉर्म करते जाएंगे। मीन फॉर ए पार्टिकुलर स्टेट by reading some particular character C, you will have another state that will be represented as the S। तो जब भी एक स्टेट पे आपको एक कैरेक्टर मिलेगा, आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे और एक्चुअल में आप उसी में या किसी और स्टेट के अंदर मूव कर जाएंगे और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को गेट करेंगे अपने इनपुट में, वो सी में देंगे। सो एवरी टाइम यू रीड अनदर कैरेक्टर यू विल रिमेन इन सम पार्टिकुलर स्टेट, और जब तक ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होगा, जब तक आपके पास जो है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आता, यानी आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो कम्प्लीटली रीड आउट नहीं होती। तो जैसे ही आप उस कंप्लीट इनपुट स्ट्रिंग को रीड आउट कर लेंगे, फाइल एंड हो जाएगी, इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, आप इसमें से आउट आएंगे और चेक करेंगे कि क्या आपकी जो स्टेट है जिसमें आप इस वक्त एस है, क्या वो एफ है। अगर वो एफ है तो इसका मतलब कंफर्म आपकी इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, आप यस रिटर्न करेंगे। अदरवाइज आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई, आप इसमें से नो जो है वो उसको रिटर्न करेंगे। सो दिस इज सिंपली द सिमुलेशन ऑफ यूर गिवन डीएफए। एल्गोरिथम क्या था कि डीएफए को सिमुलेट करें। इनपुट में बताया था कि डीएफए के अंदर एस नॉट इनिशियल एफ फाइनल होगी और ट्रांजिशन फंक्शन मूव होगा, और आउटपुट में आपने कहा है कि यस प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, नो प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये वो पार्टिकुलर एल्गोरिथम है जिसकी सिमुलेशन जो है वो हम आपको बता रहे हैं या जिसके बारे में जस्ट नाउ अभी हमने जो है वो डिस्कशंस की है। दिस इज द कन्वर्जन एग्जांपल ऑफ एनएफए टू डीएफए। आप देख सकते हैं कि एनएफए आपको गिवन है विद 4 स्टेट्स के 0 स्टेट 1 2 3 ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एनएफए की, और इसमें ये वही हम डायग्राम या उसी एनएफए की बात कर रहे हैं जिसको हम प्रीवियसली यूज कर चुके हैं। सो दिस इज सिंपली द लैंग्वेज ऑफ दिस एनएफए इज ए और बी होल स्टार एबीबी। तो ये इसकी पार्टिकुलर लैंग्वेज है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीएफए के अंदर तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से होगा। सो द बेसिक पॉइंट हियर कि आपको इस डीएफए के अंदर हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर जो है वो एग्जैक्टली 1 टाइम यूज होता हुआ नजर आएगा। सो एट स्टेट 0 you read letter A, you will have exactly 1 transition to go into the state number 1. Similarly,
At state 0 the transition of B is exactly one time. So इसी तरह 1 पे A और B की आपको एक एक ट्रांजिशन नजर आ रही है, स्टेट 2 पे भी यही प्रोसेस और स्टेट 3 पे भी आपको A और B का एक ही ट्रांजिशन जो है परफॉर्म होती हुई नजर आ रही है. So question is what language is accepted? Answer is simple. The language of DFA is same as that of the NFA. कि जिस तरह से NFA ऊपर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है सेम उसी तरह हमारे पास ये DFA भी एक्सेप्ट कर रहा है. सो इट मीन the particular language that is accepted by this DFA is also A or B whole star A B B. सो जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन या लैंग्वेज जो है वो A और B स्टार ए बी बी है NFA की, और इसके करस्पॉन्डिंग DFA की भी सेम लैंग्वेज है जिसको हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे स्पेशली सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम की, कि किस तरह से इसका जो बेसिक मेथड है हम किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट NFA इनटू DFA. सो इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. इनिशियली एम्प्टी क्लियर ऑफ एस नॉट. एस नॉट रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर जो है हम एम्प्टी क्लियर को अप्लाई करेंगे. सो दिस वन इज द ओनली स्टेट इन डी स्टेट्स. इनिशियल में ये वो वाहिद डी स्टेट्स होगी जब हम एस नॉट के ऊपर एम्प्टी क्लियर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम डी स्टेट्स बनाएं, तो इनिशियल में यही हमारे पास इनिशियल डी स्टेट होगी. एंड इट इज अनमार्क, और इसको हम अनमार्क कंसिडर करेंगे. अब ये अनमार्क का कंसेप्ट क्या है? अनमार्क का मतलब आप ये लें कि जिसको फिल वक्त आपने प्रोसेस नहीं किया होगा, आप उसको अनमार्क कंसिडर करेंगे. सो व्हाइल देयर इज एन अनमार्क स्टेट टी इन डी स्टेट्स, जब तक आपके पास डी स्टेट्स में मीन सेट ऑफ स्टेट्स में और टी की कोई स्टेट जो है वो अनमार्क होगी, तब तक आप उसको प्रोसेस करेंगे, उसको मार्क करेंगे, और उसके अंदर फिर क्या करेंगे, फॉर ईच इनपुट सिंबल ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट. आप अल्फाबेट में से जो सिंबल ए होगा, आप हर एंट्री के लिए, ए है बी है कोई भी है, उसकी हर एक एंट्री के लिए आप एक्चुअल में टी कॉमा ए मूव और उसके ऊपर एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे. अगेन ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होगा इसको हम जस्ट नाउ अभी देखते हैं, और इसको जो है इन द फॉर्म ऑफ यू हम रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर यू हमारे पास जो है वो डी स्टेट्स में नहीं होगा तो फिर हम इसको ऐड कर देंगे इस यू को एज एन अनमार्क स्टेट टू डी स्टेट्स. लेकिन अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, अगर यू आपका ऑलरेडी डी स्टेट्स के अंदर है, तो कंफर्म है कि आप इस यू को एक पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डी ट्रांजिशन टेबल के अंदर उसको राइट अप कर देंगे. अब क्वेश्चन ये है कि हम ये परफॉर्म कैसे कर सकते हैं. वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल्स टू आंसर ऑल ऑफ आवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम 2-3 स्लाइड से देखते आ रहे हैं कि ये कैपिटल टी हम किसको कह रहे हैं, हम जो है एम्प्टी क्लोजर कैसे अप्लाई करेंगे, हम किस तरह से मूव ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये अनमार्क या मार्क का कंसेप्ट क्या है. तो ये तमाम चीजें जो है हम उनको कंसिडर करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दी one example. Okay, this is the example. This is the non-deterministic finite automata in front of you. We have total 11 states in NFA. So 0 is the initial, and there are other 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 states. So 0 is the initial, and state number 10 is the final state. So you can see here we have different transitions of empty string and A and B as well. So overall, this NFA representing the same language as per previous we are using A or B whole star ABB. तो ये उसी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिसको प्रीवियसली हम यहाँ पे बारहा देख चुके हैं. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस पार्टिकुलर NFA की जो लैंग्वेज है A और B होल स्टार ABB. जब हम इसके ऊपर सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो इस NFA की जो कन्वर्टेड फॉर्म है DFA के अंदर वो भी आपके सामने, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ABCDE 5 स्टेट्स के साथ हमने इसका DFA जो है उसको डिजाइन किया. अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ है ये एक क्वेश्चन है, इसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वी आर गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ गिवन DFA ऑन बेसिस ऑफ गिवन NFA. अब इसमें
डी स्टेट्स हैं ये। अब हमारा जो डीएफए बना है इसमें जितनी भी स्टेट्स हमारे पास होंगी हम इनको डी स्टेट्स यानी कि डीएफए की स्टेट्स के तौर पे कंसिडर करेंगे। सो वी हैव 5 स्टेट्स ए बी सी डी, वी हैव रिटन हेयर ए बी सी डी ई। अब ये स्टेट्स जो हैं अगर ए की बात करें तो ये एनएफए की कौन कौन सी स्टेट्स इसके करस्पॉन्डिंग है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 0 1 2 4 7। सो इट मीन के 0 1 2 4 और 7 ये वो स्टेट्स हैं एनएफए की जो करस्पॉन्डिंग टू स्टेट ए है और ए स्टेट जो है वो डीएफए की स्टेट है। इसी तरह बी डी स्टेट जो है बी उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास उससे रिलेटेड भी हमारे पास एनएफए की कुछ स्टेट्स हैं और सिमिलरली सी डी ई के अकॉर्डिंग भी हमारे पास एनएफए की स्टेट्स जो है करस्पॉन्डिंग वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम असल में ये प्रोसेस कैसे करेंगे, हम एक्चुअल में ये देख लें कि हम रिजल्ट जो है ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। अब हमने देखना है कि इस रिजल्ट्स को कैसे हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि इस एनएफए की इस डीएफए में कन्वर्जन और हर डीएफए स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनएफए की जो स्टेट्स हैं जिनको हम डिजाइन करेंगे वो कौन कौन सी है जिनको हमने यहाँ पे राइट किया। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ये कैसे प्रोसेस होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ए और बी स्टार ए बी बी, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये एनएफए है। अब हमने इसको डीएफए में कन्वर्ट करना और इसका प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली वी कैलकुलेट एम्प्टी क्लोजर ऑफ जीरो। जीरो जो है हमारे पास एनएफए की इनिशियल स्टेट है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एनएफए के अंदर जो इनिशियल स्टेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो स्टेट जीरो है। सो अप्लाई एम्प्टी क्लोजर ऑन जीरो, कि इनिशियल स्टेट जो एनएफए की उसके ऊपर एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करें। इसको हम मेंशन भी कर रहे हैं कि स्टेट जीरो की हम बात कर रहे हैं। So when we apply empty closure on state 0, we will have 0 1 2 4 7। ये कैसे हमें मिले 0 1 2 4 7? सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, इस जीरो इनिशियल स्टेट के ऊपर आपने ये देखना है कि जब आप एम्प्टी क्लोजर को अप्लाई करेंगे यानी कि जीरो स्टेट पे आपने देखना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए आप किन किन स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जीरो स्टेट, अब बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी स्ट्रिंग रीड ना करें तो अंडरस्टूड है कि हम जीरो स्टेट के अंदर ही रहेंगे और अंडरस्टूड है कि एम्प्टी स्ट्रिंग हम रीड कर पाएंगे। सो इट मीन इसी वजह से हमने जीरो स्टेट जो है उसको यहाँ पे राइट किया। उसके बाद जीरो स्टेट पे अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी तो आप स्टेट नंबर 1 में जाएंगे, इसलिए आपने स्टेट 1 को भी यहाँ पे लिख दिया है। स्टेट 1 से फॉरवर्ड अगर करें तो एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए 2 पे आप जा सकते हैं, तो इसलिए आपने 2 को भी यहाँ पे राइट कर दिया है। और स्टेट 1 से आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए स्टेट 4 पे भी जा सकते हैं, वो भी आपने यहाँ पे राइट कर दिया है। या फिर डायरेक्टली आप जीरो स्टेट पे एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए स्टेट नंबर 7 पे जा सकते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। इस चीज को जहन में रखना है कि कंटिन्यूअसली आप कहां तक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मूव कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 1 और 1 से 2 ये एम्प्टी स्ट्रिंग का पाथ है जिसके साथ आप मैक्सिमम विजिट कर रहे हैं। अब 2 पे आपको लेबल ए मिल रहा है तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अब डिस्कनेक्ट किया जिसकी वजह से हमने इसका सेकंड राउट चेक किया है, वो क्या था फ्रॉम 0 स्टेट टू 1 एंड 1 टू 4। सो और इसी तरह 0 से डायरेक्टली जब आपने चेक किया 7 पे जा रहे हैं, लेकिन 7 पे आपको फिर लेटर ए मिल रहा है और अगेन आप जो है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सो इट मीन we only consider those type of states which are reachable by using the empty label from the initial state directly or continuously, कि जहां जहां पे हम विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली हम उनको चेक करें। तो इसलिए जब हमने जीरो के ऊपर एम्प्टी क्लोजर को अप्लाई किया तो हमारे पास जो स्टेट्स मिली है वो 0 1 2 4 7 है, मीन ये एक सेट मिला है। सो ऑल दीज स्टेट्स आर रीचेबल फ्रॉम जीरो ऑन एम्प्टी मूव्स। अब हम ये कह रहे हैं, अब क्योंकि ये एक सेट बन गया है 0 1 2 4 7 का, हम इसको कलेक्टिवली एक नाम देंगे। हम इसको यहाँ पे नाम दे रहे हैं कैपिटल ए का। सो नाउ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 1 2 4 7 बी अ स्टेट ऑफ न्यू डीएफए के अब हम अपने एनएफए का जो डीएफए वर्जन बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर जो है हमारे पास ये स्टेट होगी।
डीएफए की एक स्टेट बन चुकी है हमारे पास, उसका नाम कैपिटल ए है, और वो एनएफए की किन किन स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग है, 0, 1, 2, 4 और 7 के करस्पॉन्डिंग है। अभी प्रीवियसली जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने बात की थी कि एनएफए के करस्पॉन्डिंग आप डीएफए जनरेट करेंगे, तो जो उसमें कैपिटल ए है मीन डीएफए की स्टेट है, उसके अगेंस्ट जो है वो एनएफए की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो वो हम देख रहे हैं दिस इज 0, 1, 2, 4, 7 है। तो यहाँ पे अब हमें जो रिजल्ट मिला है उसमें भी आप देख सकते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4, 7। मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई होगी, और इसके साथ ही आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इन जनरल के इनिशियली आपने क्या करना है, एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करना है इनिशियल स्टेट पे, और इट विल बी द ओनली स्टेट इन डी स्टेट एंड इट इज अनमार्क। और ये वो वाहिद स्टेट है इनिशियली जिसको आप डीएफए के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इनिशियल में आपने इसी को इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये अनमार्क है क्योंकि आपने अभी इसको किसी किस्म का इसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया, इसको जस्ट आप जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आए हैं। अभी आपने इसके ऊपर ऑपरेशन जो है रीडिंग का, इनपुट रीडिंग का जो है वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हमारे पास स्टेट जो है वो अनमार्क है। अब ये कैपिटल ए मिल चुका है, अब हम बड़े अच्छे तरीके से आपको सेकंड देखना पड़ेगा कि किस तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हम उसी डायग्राम को यहाँ पे लेके आए, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस कर रहे थे एनएफए की। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडली फर्स्टली तो हमने एम्प्टी मूव चेक कर लिया है स्टार्ट स्टेट के ऊपर, अब हम कह रहे हैं सेकंड वी कैलकुलेट ए एंड बी। अब हम ए और बी को कैलकुलेट करेंगे, हम इनके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हम इनको कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर करें, एम्प्टी क्लोजर ऑफ मूव ऑफ ए कॉमा ए, कि जो अभी जस्ट नाउ हमने डीएफए की स्टेट जिसको हम कह रहे हैं ए अभी हमने डिजाइन की है, हम उसके ऊपर अपना लेबल ए और इसी तरह अपना लेबल बी जो है वो 1 बाय 1 चेक करेंगे, उनकी मूवमेंट चेक करेंगे, और जब उनमें से कुछ सेट ऑफ स्टेट्स मिलेंगी, जो भी रिजल्ट यहाँ पे हमें आएगा मूव ऑफ ए कॉमा ए को रीड करने के बाद, उनके ऊपर फर्दर फिर हम एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे। सो बाय दिस वे we will be able to calculate value of A and correspondingly value of B on particular label D states A। तो इस तरह हम ये प्रोसेस को जो है कंटिन्यू कर सकेंगे। अब जरा गौर करें, ये आपको 2 बॉक्सेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं रिजल्ट साइड पे कि दिस वन इज अबाउट A एंड दिस वन इज अबाउट B। तो ए के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है हमारे पास वो हम क्या बता रहे हैं, एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ए कॉमा ए। सो इसका क्या मतलब है कि हमने सिंपली अब कैपिटल ए के पास क्या है वो हम जानते हैं, कैपिटल ए के पास कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एनएफए की जो कौन कौन सी थी, अभी हमने उनको फाइंड किया था 0, 1, 2, 4, 7। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस ए के करस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे हमने इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स को राइट कर दिया। सो एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ए कॉमा ए, हम इसको एज इट इज ही लिख रहे हैं कि एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव इनटू कैपिटल ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, जो कैपिटल ए की सेट ऑफ स्टेट्स हैं। सो वी विल हैव 0, 1, 2, 4, 7, और उसके बाद जो है वो हम ए को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अब इसमें ये जो स्टेट्स आपके सामने है इन पे 1 बाय 1 आप इस लेटर ए को जो है वो चेक करेंगे, जिस तरह आपने चेक किया। जब 0 के ऊपर आप ए को चेक करते हैं तो जरा गौर करें अपने एनएफए के अंदर, आपने जब 0 के ऊपर ए को चेक किया तो कोई ट्रांजिशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, आपको यहाँ पे एम्प्टी की ट्रांजिशंस मिल रही हैं। एक एम्प्टी आपको स्टेट 7 पे लेके जा रहा है, एक एम्प्टी आपको 0 से 1 पे लेके जा रहा है। सो इट मीन कि हमारे पास जो है ए का 0 स्टेट के ऊपर कोई लेबल या ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं स्टेट 1 पे ए को चेक करें। तो जब हमने 1 पे ए को चेक किया, अगेन सेम रिजल्ट है, हमारे पास एम्प्टी ट्रांजिशंस है जो हमें 1 से 2 या 1 से 4 पे लेके जा रही हैं, लेकिन ये हमें बेसिकली जो है ए की कोई ट्रांजिशन प्रोवाइड नहीं कर रही। फिर हम स्टेट 2 को चेक करेंगे, डेफिनेटली वी हैव ए ट्रांजिशन। स्टेट 2 पे
ए लेबल को रीड करते हुए आप स्टेट 3 पे जा रहे हैं। ओके, सो इट मीन कि अब आपको जो नई स्टेट यहां से मिल रही है वो क्या है कि 2 पे जब लेटर ए को आपने रीड किया तो वहां पे आपको एक नई स्टेट मिल रही है जो स्टेट 3 है। अब इसको जहन में रखें कि स्टेट 3 आपके पास आ चुकी है। इसी तरह स्टेट 4 पे ए को चेक करें। स्टेट 4 पे जब हमने ए को चेक किया तो यहाँ पे बी की ट्रांजिशन है लेकिन ए की ट्रांजिशन नहीं है, सो वी विल हैव नथिंग फ्रॉम हियर। इसी तरह 7 पे अगर ए की बात करें तो 7 पे ए की ट्रांजिशन अवेलेबल है, तो 7 पे जब ए को रीड करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट जो मिलेगी वो स्टेट नंबर 8 होगी। सो वी हैव नाउ 2 स्टेट्स, वन इज 3 जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एक स्टेट आपको 3 मिली है और एक नई स्टेट इस वक्त ए को रीड करते हुए आपको स्टेट 8 मिली है। तो इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि मूव करेंगे 0 1 2 4 7 पे ए को लेबल को चेक करेंगे तो आपको दो नई स्टेट्स मिलेंगी, यू विल ऐड 3 एंड 8। वो कैसे मिली हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम दे रहे हैं। सिंस at state 2 you read letter A, you will have state number 3, and similarly at state 7 you read letter A, you will have the new state as state 8। और ये दो नई स्टेट्स आपको मिल गई हैं। अब आपने क्या करना है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो एक्चुअल में हमने यहाँ परफॉर्म किया है, हमने इसका रिजल्ट देखा है, हमने मूव इनटू 0 1 2 4 7 कॉमा ए इसको एक्चुअल में चेक किया है, तो यहां से हमें दो नई चीजें मिली है, स्टेट 3 एंड स्टेट 8 जो है वो मिली है। तो हम इन दोनों को उठाएंगे और इस पूरे सेट के अंदर जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे। तो अब हमारे पास जो ये फॉर्म बन जाएगी वो क्या होगी, एम्प्टी क्लोजर अब हमें फाइंड करना पड़ेगा 3 और 8 का। तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉम अबव, फ्रॉम दिस वी हैव एम्प्टी क्लोजर ऑफ 3,8 के इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करके दो नई चीजें आपको, ये दो नई स्टेट्स मिली हैं जो कि हमारे पास क्या है 3 और 8 है, तो उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब 3 और 8 के ऊपर आप एम्प्टी क्लोजर को अप्लाई करेंगे वन बाय वन। पहले 3 के ऊपर एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करें और देखिए कौन कौन सी स्टेट्स पे आप जा सकते हैं, और इसी तरह स्टेट 8 पे आप एम्प्टी क्लोजर को अप्लाई करें और देखें आप किन किन स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं, उनको आप यहाँ अपने सेट के अंदर लेके हैं। तो सबसे पहले हम 3 पे देखेंगे। जरा आप अगर एनएफए को गौर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट 3 पे अगर आपको एम्प्टी लेबल मिले तो आप स्टेट 6 में जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर है, ये आपको 6 में लेके जा रहा है। और 6 के बाद जो है ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ये आपको 7 पे भी लेके जा सकता है। ओके, और इसी तरह 6 से ये आपको कहाँ पे लेके जा रहा है 1 में, और 1 से फिर ट्रांजिशन एम्प्टी की जो आपको 2 में भी लेके जा सकती है, आपको 4 में भी लेके जा रही है। और आगे जो है ये डिस्कनेक्ट हो रही है क्योंकि आगे बी की ट्रांजिशन है और इधर आपके पास जो है वो ए की ट्रांजिशन है। सो इन दिस वे अब आप देखें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपके पास आई है कि आपने 3 स्टेट पे रहते हुए, यानी 3 स्टेट पे जब एम्प्टी को रीड किया तो अब इसको इटसेल्फ भी शामिल करना है, जिस तरह हमने इनिशियल में 0 को इटसेल्फ शामिल किया था, अब 3 इटसेल्फ शामिल होगा, 6 शामिल होगा, 7 शामिल होगी, इसी तरह स्टेट 1 शामिल होगी, 2 होगी और 4 होगी। तो जब हमने इनको राइट करना शुरू किया ऑर्डर में तो हमने क्या लिखा कि हम स्टेट 1 को भी विजिट कर सकते हैं, 2 को भी विजिट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। हम 3 इटसेल्फ जो है उसको भी यहाँ पे राइट कर रहे हैं, हम 4 को भी विजिट कर सकते हैं, हम उसके बाद जो है वो 6 को भी विजिट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम 7 को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब हमने स्टेट 8 के ऊपर एम्प्टी क्लोजर देखा तो स्टेट 8 के ऊपर एम्प्टी क्लोजर का कोई आपके पास आउटगोइंग नहीं है। अब इटसेल्फ स्टेट 8 को भी आप शामिल करेंगे, तो हमने इटसेल्फ स्टेट 8 को जो यहाँ पे शामिल किया है। So now collectively we have the new set that is labeled that have states as 1 2 3 4 6 7 8। Okay, अब ये कैसे हमें मिला है उसकी रीजन हम यहाँ बता रहे हैं। सिंस 3 से आप 6 पे गए थे, 3 आपको 6 पे लेके जा रहा है, 6 से आप 1 में जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप 6 से आप 1 में जा रहे हैं, और 1 आपको 4 में लेके जा रहा है, ये आप देख सकते हैं 1 से 4 में जा रहे हैं, और इसी तरह 6 से 7 में भी जा सकते हैं, और इसी तरह 1 से 2 में भी आप जा सकते हैं। एंड ऑल दीज आर प्योरली डिपेंडेंट बाय एम्प्टी मूव्स। तो एम्प्टी मूव्स को यूज करते हुए आपने
जो है वो इनको बनाया। अब ये जो 1 2 3 4 6 7 8 का एक सेट बन गया है, अब ये क्वाइट डिफरेंट है जो सेट पहले से मौजूद है। जो सेट पहले से मौजूद था जिसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया था, उसके अंदर स्टेट्स थी हमारे पास 0 1 2 4 7। लेकिन अब जो सेट बना है उसमें जो स्टेट्स हैं लेबल उनके हैं 1 2 3 4 6 7 8। So it means this is different from the previous one. So we have to give it another different unique name, और हम इसको एक और different name as a capital B के तौर पर राइट कर रहे हैं। So we are writing here capital B is equal to 1 2 3 4 6 7 8. So B a new state। अब ये हमारे पास DFA की एक नई स्टेट बन गई है, पहले A बनी थी, अब हमारे पास जो है वो B स्टेट्स बन गई। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, अब जरा गौर करें। हमने ये कहा था कि कैपिटल ए के ऊपर आप ए को चेक करें और कैपिटल ए पे बी को चेक करें। तो इस वक्त हम क्या कर रहे थे, हम कैपिटल ए पे स्मॉल ए को चेक कर रहे थे, और जब हमने कैपिटल ए पे स्मॉल ए को चेक किया तो आप देख सकते हैं आपको नई स्टेट मिली है, यानी कि कैपिटल बी मिला है। सो इट मीन कि कैपिटल ए पे जब आप लेटर ए को रीड करेंगे तो आप जिस न्यू स्टेट के अंदर जा सकते हैं वो स्टेट आपके पास बी है। सो इसको इस फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है, जो आप देख सकते हैं कि डी ट्रांजिशन के जो डीएफए की स्टेट्स का टेबल है ट्रांजिशन, उसमें कैसे मूवमेंट होगी कि कैपिटल ए पे जब लेटर ए आपको मिलेगा तो आप मूव करते हुए आप स्टेट बी के ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो ये एक प्रोसीजर हमने अप्लाई कर दिया है स्टेट ए के लिए, लेटर ए के लिए। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि बी के लिए अब हम अप्लाई करेंगे एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ऑफ कैपिटल ए कॉमा बी। तो हमने इसको राइट किया यहाँ एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ए कॉमा बी। सिमिलरली उसी तरह कैपिटल ए को हमने अल्टरनेट उसका दिया, रिप्लेस किया इसकी वैल्यूज के साथ। तो ए की जो वैल्यूज है हमारे पास वो 0 1 2 4 7 है, अब वो हमने यहाँ पे राइट कर दी है। पहले हमने ए को चेक किया था इन स्टेट्स पे, अब हम इन स्टेट्स के ऊपर किसको चेक करेंगे, बी को। ओके, तो वन बाय वन को चेक करें। तो जीरो स्टेट पे बी को चेक किया, जीरो स्टेट पे बी लेवल आपको कहीं भी नहीं लेके जाता, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एम्प्टी की दो ट्रांजिशन है जो आपको स्टेट 1 और स्टेट 7 पे लेके जा सकती हैं। सो वी विल रिसीव नथिंग फ्रॉम हियर। सो स्टेट 1 की बात करें, 1 पे बी को चेक करें, तो 1 पे बी को चेक किया, अगेन वी हैव नो ट्रांजिशन ऑफ लेबल बी ऑन स्टेट 1। इससे भी हमें कुछ नहीं मिला। हम स्टेट 2 पे चले गए, 2 पे लेटर बी को जब हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि 2 पे ए की ट्रांजिशन अवेलेबल है, लेकिन बी की ट्रांजिशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो वी विल रिसीव नथिंग फ्रॉम हियर अगेन। स्टेट 4 पे चेक करें, जब हमने स्टेट 4 पे चेक किया तो डेफिनेटली वहां पे लेबल बी मिल रहा है। सो बाय रीडिंग लेटर बी वी कैन गो फ्रॉम स्टेट 4 टू 5। तो अब हमें यहां से अब जहन में रखें कि एक नई चीज मिली है जो कि स्टेट नंबर 5 है। 7 पे बी को चेक करें, जब हमने 7 पे बी को चेक किया तो वहां पे हमें मिला कि ए की ट्रांजिशन है लेकिन बी की कोई ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। सो इन दिस वे वी ओनली हैव सिंगल न्यू स्टेट एज द स्टेट नंबर 5। तो हमने क्या लिखा कि हम ऐड कर रहे हैं नई स्टेट 5 को, और ये हमें कैसे मिली है, मूव 4 कॉमा बी के 4 स्टेट पे जब बी लेटर रीड किया तो उससे हमें ये स्टेट नंबर 5 जो है वो रिसीव हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस कंप्लीट सेट में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कंप्लीट सेट को रिप्लेस कर देंगे जस्ट किसके साथ, 5 के साथ। सो फ्रॉम दिस वी हैव एम्प्टी क्लोजर ऑफ 5। अब हमने क्या करना है, इस 5 के ऊपर एम्प्टी क्लोजर को चेक करना है कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो जब हमने 5 के ऊपर चेक किया तो आप देख सकते हैं 5 के ऊपर आप जब एम्प्टी क्लोजर को चेक करेंगे तो डेफिनेटली 5 इटसेल्फ भी शामिल होगा, और उसके बाद 6 भी, और उसके बाद 7 भी, और इसी तरह 6 से फिर आप रिटर्न बैक हो रहे हैं 1 भी, 2 भी, 2 के आगे नहीं जा सकते क्योंकि लेटर ए है, और 1 के साथ यहाँ पे 4 भी। तो अब आपको जो नई स्टेट्स समझ लें एम्प्टी की बेसिस पे जो मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं। आप स्टेट 1 को भी विजिट कर पा रहे हैं, आप स्टेट 2 को भी विजिट कर रहे हैं, आप स्टेट 4 को भी विजिट कर रहे हैं, 5 इटसेल्फ इसमें शामिल है, स्टेट 6 विजिट हो रही है, और स्टेट 7 जो है उसको विजिट कर रहे हैं। सो कलेक्टिवली वी हैव दिस सेट ऑफ स्टेट्स एज 1 2 4 5 6 7। और ये हमें कैसे मिली है,
ये आप देख चुके हैं कि सिंस 5 to 6, 6 to 1, 1 to 4 ये वो है जो आपको एम्प्टी के साथ मिल रही है। 5 to 6, 6 to 1, 1 to 4 और इसी तरह 1 से 2 भी आप जा पा रहे हैं और इसी तरह आपको जो है वो 6 to 7 जो है उस पे भी आप मूव कर पा रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ एम्प्टी मूव्स। अब इसको हमने ये देखना है कि क्या ये सेट पहले बन चुका है। तो जब हमने इसको चेक किया 1 2 4 5 6 7 को, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो जिसकी वजह से अब हमें इसके लिए एक और नया सेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एक और नया लेबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सो वी आर एडिंग हियर द डीज another d states as the capital C. So capital C is equal to 1 2 4 5 6 7. We have just discussed about that. तो ये वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो कैपिटल सी से रिगार्डिंग होगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि कैपिटल ए पे जब आप लेटर बी रीड करते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, ट्रांजिशन टेबल आपको कहाँ पे लेके जाएगा, सी में। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से राइट किया कि in D transition DFA table at state A, if you read letter B, you will go into the state number C in the DFA, new DFA जो कि आप डिजाइन यहाँ पे कर रहे हैं। इसको देखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमने कैपिटल ए के ऊपर दोनों ऑपरेशन जो ए बी के थे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब वन बाय वन जो जो स्टेट्स आपके पास आई हैं उनके ऊपर आपने इसी तरह ए बी लेबल्स जो है उनको यूज करते रहने। कैपिटल ए का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप ए बी के साथ। अब हम कैपिटल बी स्टेट जो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1 2 3 4 6 7 8 वाली, इसके ऊपर अब हम स्मॉल लेटर ए और बी को अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे बी के ऊपर जो है वो ए बी को अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं व्हेन वी अप्लाई ए, एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव बी कॉमा ए, प्रोसीजर तो सेम है जिस तरह एज पर प्रीवियस हम करते आ रहे हैं। सो एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव एंड कैपिटल बी इज रिप्लेस्ड विद सेट वैल्यूज द 1 2 3 4 6 7 8 और उसके ऊपर आप किस लेटर को रीड कर रहे हैं, आप लेटर ए की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हमने इसको चेक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 पे अगर आप ए को रीड करें तो आप देख सकते हैं 1 पे ए की कोई आउटगोइंग नहीं है, और 2 पे ए को रीड करें 2 पे आपको स्टेट 3 मिल रही है। आप इसको जहन में रखें कि 3 आपको एक नई स्टेट मिली है। और इसी तरह 3 पे अगर आप बात करें तो 3 पे आपको कोई भी ए की ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही। 4 की अगर आप बात करें तो 4 के ऊपर जो है आपको बी की ट्रांजिशन मिल रही है, ए की नहीं मिल रही। और 6 की अगर बात करें तो 6 पे भी कोई ट्रांजिशन ए की नहीं है। 7 की बात करें तो 7 पे ए की ट्रांजिशन है और इसे आपको लेबल 8 मिल रहा है। ओके, सो एक तो आपको यहाँ से इनिशियल में 3 मिला था और एक 8 मिला है, और 8 के ऊपर जब ए को चेक किया तो आपको कोई ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से मूव होती नजर नहीं आ रही। सो ए और बी, सॉरी 3 एंड 8 ये दो नई स्टेट्स हैं जिनको आपने फाइंड आउट यहाँ से किया है। अब जरा गौर करें, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। शॉर्टली हम इन चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस में देखें तो जब हमने इनके ऊपर अप्लाई किया था तो जो हमें दो नई चीजें मिली थी वो 3 और 8 स्टेट थी। तो हमने इस पूरे सेट की जगह फिर 3 8 को लिखा और 3 8 के ऊपर फिर हमने एम्प्टी क्लोजर अप्लाई किया। ओके, तो वही चीज अब हमें यहाँ पे मिली है, 3 और 8 मिला है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे 3, 8 के साथ तो उसके ऊपर एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें इससे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें प्रीवियस मिल चुका है। तो इसलिए जब हमने 3, 8 को यूज किया तो हमें जो यहाँ से सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी वो कौन सी हैं, वो 1 2 3 4 6 7 8 है और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बी को। तो इसलिए अब हमने वहां पे उसको शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि इससे हमें 1 2 3 4 6 7 8 मिलेगा और ये कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन दिस वे इफ एट स्टेट बी यू रीड लेटर ए यू विल गो इनटू द स्टेट बी एज वेल, यानी आप बी के ऊपर ए लेटर को रीड करके लूप करेंगे, आप उसी स्टेट के ऊपर मौजूद रहेंगे। अब जब हमने करस्पॉन्डिंगली बी को चेक किया तो बी पे आप देख सकते हैं कि एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव बी कॉमा बी, एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव और कैपिटल बी को रिप्लेस किया इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ
और नंबर ऑफ स्टेट्स आपको यहाँ पे क्या दे रही हैं, 1 2 3 4 6 7 8। जिस तरह हमने ऊपर देखा था, जब हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब इसको थोड़ा सा अगर हम प्रोसेस कर लें तो ये हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमें कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। सो यू कैन सी हियर कि अगर हम इसकी बात करें तो हम फाइंड करते हैं वन स्टेट पे अगर लेटर बी चेक करें तो वन स्टेट पे लेटर बी की ट्रांजिशन नहीं है, और टू स्टेट पे बी की ट्रांजिशन चेक करें तो टू स्टेट पे बी की ट्रांजिशन नहीं है, थ्री स्टेट पे बी की ट्रांजिशन जब चेक की है तो थ्री पे बी की ट्रांजिशन भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह फोर स्टेट पे जब चेक किया तो बी की ट्रांजिशन यस अवेलेबल है, वो 5 है, तो 5 हमें यहां से मिला, हमने इसको राइट कर लिया। 6 पे जब हमने चेक किया तो 6 पे बी की ट्रांजिशन नहीं है, फिर 7 पे चेक किया 7 पे भी बी की ट्रांजिशन नहीं है, और जब 8 पे चेक किया तो हमें 8 पे एक ट्रांजिशन मिल रही है 9 की फॉर्म में। सो इन जनरल 5 और 9 हमें यहाँ से दो स्टेट्स जो है वो मिली हैं। अब हम इनके ऊपर जो है वो एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे, यानी कि इक्लोजर अगर हम ये यहाँ पे लिखें इसको, अब हम इसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 5 स्टेट के ऊपर अगर आप एम्प्टी को यूज करें तो आप 6 में जा सकते हैं, हम इसको लिखते जाते हैं, आप 6 में जा सकते हैं, और उसके बाद जो है एम्प्टी के साथ ही आप 7 में जा सकते हैं। ओके, और इसी तरह 6 से ऑनवर्ड जो है वो आप 1 को विजिट कर सकते हैं, आप 2 को विजिट कर सकते हैं, इसी तरह आप स्टेट 4 को विजिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप 4 को विजिट कर सकते हैं, और 4 के बाद 5 तो इनिशियल में इटसेल्फ जो है उसको शामिल होना चाहिए क्योंकि हम 5 के ऊपर इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो 5 जो है वो भी शामिल होगा। और इसी तरह जो है अब ये इसके लेबल खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये 9 के ऊपर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो 9 के ऊपर आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो 9 इटसेल्फ जो है इसको शामिल करेंगे। सो कलेक्टिवली इसमें से अब हमें अगर इसको अरेंज करें तो ये क्या बनता है, 1 है, 2 है, इसमें हमारे पास 4 है, इसमें हमारे पास 5 है, इसमें हमारे पास 6 है, इसमें हमारे पास 7 है, और इसमें हमारे पास 9 है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही सेट हमें मिल गया है जिसको हमने इन डिटेल जो है यहाँ पे लिखा है 1 2 4 5 6 7 एंड 9। अब ये वो सेट है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो पहले डिसाइड या डिजाइन नहीं हुआ, पहले हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक न्यू नेम दिया है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डी के साथ। सो in transition table, if at state capital B you read letter small b, you will go into the state number D। तो इस तरह से आप D की तरफ जो है वो उसको मूव करवा देंगे। अब हमने कैपिटल A का AB चेक कर लिया और इसी तरह कैपिटल B का AB चेक कर लिया। अब हमें जो दो नई स्टेट्स यहाँ पे मिल रही हैं या मिली हैं, वो A और B तो विजिट हो चुकी हैं, और स्टिल पेंडिंग स्टेट्स जो है जिनके ऊपर हम फर्दर काम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास C और D है। अब हम बात करेंगे C के ऊपर वन बाय वन, जिस तरह हमने अभी चेक किया B को, अब हम चेक कर लेते हैं स्टेट नंबर C को। तो हम ये आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑपरेशन के बाद फोर्थ ऑपरेशन पे अब हम आ गए। वी कैलकुलेट फॉर स्टेट C ऑन A, B, सो वी आर राइटिंग हियर एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव C, A, एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव, और C के सेट को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। C सेट में कौन सी वैल्यूज हैं, 1 2 4 5 6 7, उसको हमने यहाँ पे लिखा, और A एज इट इज हमने लिखा। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो आप जरा गौर करें कि 1 के ऊपर आप जरा इसको फाइंड करें, हम इसको दोबारा से जो है वो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 के ऊपर A को फाइंड करें, तो जब हमने 1 के ऊपर A को फाइंड किया तो इसकी कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है, और 2 के ऊपर A को फाइंड करें, 2 पे A को फाइंड किया तो हमें 3 मिल रहा है। तो इन जनरल ये बात तो जहन में रखें, 2 से हमें कौन सी नई चीज मिल रही है, वो 3 है, नंबर 1, इसको लिख लिया हमने यहाँ पे। 4 पे A को चेक करें, जब 4 पे A को चेक किया तो वहां पे A की ट्रांजिशन नहीं है। इसी तरह 5 पे A को चेक करें, तो 5 पे A को चेक किया, उसकी भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, और 6 पे A को चेक करें तो उसकी भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, और इसी तरह अगर आप चेक करें 7 पे A को, तो 7 पे A की भी
एक ट्रांजिशन आपको नजर आ रही है जो आपको कहाँ पे लेके जा रही है, वो आपको स्टेट 8 पे लेके जा रही है। सो इट मीन हमने एक और स्टेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, तो 3 और 8 जो है वो हमें एज अ रिजल्ट यहाँ पे मिली है। अब हम जब 3 और 8 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फिर हम एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई द एम्प्टी क्लोजर ऑन 3,8। इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 के ऊपर अप्लाई इसको करेंगे तो ये एक बात तो डेफिनेट है कि 3 इटसेल्फ शामिल होगी उसमें, और 3 पे एम्प्टी और चेक करें। 3 पे एम्प्टी जो है वो आपको 6 पे लेके जा सकता है, उसको भी राइट कर लें, या आपको 7 में लेके जा सकता है, उसको भी राइट कर लें, और 6 से रिवर्स होके ये आपको 1 में भी लेके जा सकता है, ये आपको 2 में भी लेके जा सकता है, ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह आपको जो है वो 4 के अंदर जो है वो भी विजिट करवा सकता है। उसके बाद अब इसमें कोई और ऑप्शंस नहीं है। फिर आपने 8 को चेक किया, तो 8 के ऊपर जब एम्प्टी क्लोजर चेक किया तो वहां पे कोई एम्प्टी क्लोजर का कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब आप 8 को इटसेल्फ जो है वो यहाँ पे शामिल करें। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 6 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद आपके पास 8 है। अब अगर इसको मैच करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही रिजल्ट है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो 1 2 3 4 6 7 8, तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिला। अब ये वही सेट है जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियसली बना चुके हैं। आप अपने सामने तमाम सेट्स को रखें, ए बी सी डी जितने भी हैं, और जो जो बनते जा रहे हैं उसको सामने रखते जाएं, ताकि आपको ये क्लियर होता जाए कि किस तरह से नए सेट्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट मीन this is equal to capital B. So it means if at state C in new DFA, if you read letter small a, you will go into the state number capital B. अब हम आते हैं C के लिए B की ट्रांजिशन के ऊपर। तो जब उसको चेक करेंगे उसको भी इसी तरह हमें उसी सेंस में चेक करना पड़ेगा। एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव C, B के, और C को जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं C की, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 4 5 6 7 के तौर पे, जो कि उसकी स्टेट्स हैं C की। और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे B को। तो जब 1 पे आप B को चेक किया तो 1 पे B की कोई ट्रांजिशन नहीं है। 2 पे B की ट्रांजिशन चेक करें, 2 पे B की कोई ट्रांजिशन नहीं है। फिर हमने 4 पे B की ट्रांजिशन चेक की, यस वी हैव अ ट्रांजिशन एंड वी हैव द न्यू वैल्यू ऑफ स्टेट नंबर 5। इसी तरह 5 पे B को चेक करें, कोई ट्रांजिशन नहीं है। 6 पे B को चेक करें, कोई ट्रांजिशन नहीं है। 7 पे B को चेक करें तो कोई ट्रांजिशन नहीं है। सो वी हैव ओनली दी स्टेट 5। 5 हमें मिला है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर एम्प्टी क्लोजर को, इसके ऊपर 5 के ऊपर। सो जब हमने इन तमाम में से चेक किया तो हमें सिर्फ 5 मिला है। सो वी आर प्लेसिंग 5 here एंड वी अप्लाई एम्प्टी क्लोजर ऑन दिस वैल्यू ऑफ 5। तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 तो इटसेल्फ जो है वो अब शामिल होगा, और उसके बाद आप 5 आपको एम्प्टी रीड करते हुए 6 पे लेके जा सकता है, ये आपको वहां से 7 में लेके जा सकता है, और ये 6 से रिटर्न बैक होके आपको स्टेट 1 में लेके जा सकता है, स्टेट 2 में लेके जा सकता है, स्टेट 4 में। मेरा ख्याल है कि ये बातें अब आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हम ये प्रोसीजर जो है वो उसको अप्लाई करते चले जा रहे हैं। अब अगर हम इसको अरेंज करें तो हम इसको लिखेंगे 1 2 4 5 6 and 7. So this is the set you can see here 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7. So this is the set and this is equal to capital C. ये वही चीज है जो ऑलरेडी पहले डिफाइंड हो चुकी है कि इसका रिजल्टिंग वैल्यू जो है सेट की वो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि स्टेट सी पे लेटर बी मिलने पे आप जो ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे वो क्या होगी, सेम सिमिलर सी की ट्रांजिशन जो है उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम कैपिटल ए के लिए ए बी, कैपिटल बी के लिए ए बी और कैपिटल सी के लिए ए बी प्रोसेस कर चुके हैं, और स्टिल अभी भी एक स्टेट डी स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि हमें मिली थी, वो अभी पेंडिंग है, उसको अब हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। अगर हमें कोई नई स्टेट मिल गई तो हम प्रोसीड करेंगे, अगर हमें कोई नई स्टेट नहीं मिली तो हम अपने प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो जब हम नेक्स्ट स्टेट में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे,
अब हम डी स्टेट्स के ऊपर ये देख सकते हैं, डी के ऊपर आप ए और बी को वन बाय वन चेक करेंगे। सो दिस इज द फिफ्थ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। सो first of all we are processing the label A on D states. So empty closure into move D comma A, simply D को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है 1 2 4 5 6 7 9 की फॉर्म में। तो जब इसके ऊपर हम A को चेक करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 पे A को चेक करें, 1 पे A की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 पे A को चेक करें, 2 पे A की पॉसिबिलिटी है। ये आपको स्टेट 3 दे रहा है, हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है। और उसके बाद जो है वो 4 की बात करें तो 4 पे लेटर A की कोई ट्रांजिशन नहीं है। 5 की बात करें, 5 पे A की कोई ट्रांजिशन नहीं है। 6 की बात करें, 6 पे A की कोई ट्रांजिशन नहीं है। 7 की बात करें तो 7 पे A की ट्रांजिशन है, और ये आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, स्टेट 8 पे। इसी तरह 7 की बात करें, ये हो चुका है। 9 की बात करें तो 9 के ऊपर भी आपको एक ही कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं मिल रही। तो इन जनरल यू रिसीव 3,8। तो जब इसको 3,8 यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके ऊपर जो है वो आप एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये प्रोसेस जो है वो आप स्टार्ट से शुरू कर लेके आ रहे हैं, अब आपको ये जहन में आ गया होगा कि ये वही एंट्री है जो वेरी फर्स्ट आप जो है वो फाइंड कर चुके हैं जब आपने इसको प्रोसेस किया था। अगर हम ये थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें यहाँ पे जाके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इसको प्रोसेस किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इन जनरल जो है वो 3,8 और एम्प्टी क्लोजर, तो ये वही चीज एम्प्टी क्लोजर ऑफ 3,8। तो इससे हमें जो चीज मिली थी वो क्या है, 1 2 3 4 6 7 8। तो इसको मैं इन जनरल यहीं पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड आफ्टर दैट 6 7 एंड 8। तो ये एंट्रीज हैं जो हमें यहाँ से मिली हैं। हम अगेन बैक वहीं पे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि जब हमने इनको चेक किया यहाँ पे डी के ऊपर ए को, तो हमें ये 1 2 3 4 6 7 8 ये सेट मिला है, और ये सेम वही सेट है जिसको हमने नाम दिया था कैपिटल बी का। सो इट मीन एट स्टेट डी इफ यू रीड लेटर ए यू विल गो इनटू द स्टेट बी। इस तरह से आप स्टेट बी पे चले। स्टिल अभी हमें कोई नई जो है वो स्टेट नहीं मिली। हम अब डी के ऊपर जो है डी स्टेट के ऊपर लेटर बी को चेक करेंगे। सो वी आर अप्लाइंग एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ऑफ डी कॉमा बी। सो एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव इनटू डी के ऊपर जो है वो आपने इसकी सेट ऑफ स्टेट्स लिखी हैं। तो डी का जो आपके पास ओवरऑल वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, वो 1 2 4 5 6 7 9 है। अब उन्हीं के ऊपर जब आपने बी को चेक किया, उसको हम चेक करके देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स आपको मिलती हैं। 1 पे बी को चेक करें, कोई कुछ ऑपरेशन नहीं है। 2 पे बी को चेक करें, 2 पे बी की ट्रांजिशन नहीं है। 4 पे बी को चेक करें, यस 4 पे बी की ट्रांजिशन है, और ये आपको नंबर 5 के ऊपर जो है वो लेके जा रहे हैं। और 5 के ऊपर बी की ट्रांजिशन नहीं है, 6 के ऊपर बी की ट्रांजिशन नहीं है, 7 के ऊपर बी की ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन 9 के ऊपर जो है वो बी की ट्रांजिशन है, और वो आपको कहां पे लेके जा रहा है, 10 पे। तो इसका मतलब अब 5 और 10 जो है ये न्यू सेट बन गया है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करना है। तो जब आप 5 और 10 के ऊपर एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा। जब हमने इसको चेक किया 5 के ऊपर, तो 5 से एम्प्टी क्लोजर 5 इटसेल्फ शामिल होगा, और आप 6 में जा सकते हैं, आप 7 में जा सकते हैं, और 6 से रिटर्न बैक होके आप 1 में जा सकते हैं, आप 2 में जा सकते हैं, आप 4 में जा सकते हैं। ये प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। और 10 पे रहते हुए आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई लेबल नहीं है। तो 10 इटसेल्फ जो है उसको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो अब जो इसको अरेंज अगर हम करें तो हमें जो चीज मिली है वो है 1 2 4 5, उसके बाद 6 है, 7 है और 10 वैल्यूज है। So all these values are quite similar, but the number 10 is different from all of the previous sets. तो आप देख सकते हैं कि अब हमें जो सेट मिला है वो क्या है, 1 2 4 5 6 7 और 10 है। अब ये नया सेट है, हम इसको नाम भी नया रखेंगे, हम इसको लेबल कर रहे हैं कैपिटल ई के साथ। So it means at state D in DFA, if you read letter B, you will go into the state number E. ये जो ग्रीन कलर के अंदर हम इसको दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में इसकी प्रोसेसिंग है। DFA जो हम बनाएंगे आगे,
ये उसकी ट्रांजिशंस जो है हम उसको देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे उसके ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म होंगे। अब हम ए बी सी के बाद डी की भी, ए बी जो है उसको प्रोसेस कर चुके हैं, अब हमें लेकिन नई स्टेट मिल गई है ई, अब हमें इसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा। जब तक आपको नई स्टेट मिलती रहेगी तब तक आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन जब आपके पास नई स्टेट्स नहीं आएगी और आप अपनी तमाम एग्जिस्टिंग स्टेट्स को विजिट कर चुके होंगे तो वहां पे आपने अपने इस प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर देना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम ई के ऊपर आ जाते हैं और ई की प्रोसेसिंग करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। सो फाइनली वी कैलकुलेट फॉर स्टेट ई ऑन ए कॉमा बी। सो जब ए के लिए चेक किया, एम्प्टी क्लोजर इनटू मूव ई कॉमा ए, तो ई को रिप्लेस किया, ई की जो न्यू वैल्यूज अभी हमने गेट की है 1 2 4 5 6 7 और 10। इसके ऊपर जब हम ए को चेक करेंगे तो 1 बाय 1 इसको चेक करें, तो जब हमने इसके ऊपर इसको चेक किया तो हमें यहां से मिलेंगी वैल्यूज 1 2 3 4 6 7 8। हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की, जब सारा प्रोसेस हमने 1 बाय 1 देखा है तो उसको भी देख लेते हैं। सो वी हैव स्टेट 1 पे ए को चेक करें, 1 पे ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, 2 पे ए की ट्रांजिशन है जिससे हमें लेवल 3 मिल रहा है, उसको हमने यहाँ पे राइट किया, और 4 पे हमें ए की कोई ट्रांजिशन नहीं मिल रही, 5 पे ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, 6 पे ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, 7 पे ए की ट्रांजिशन है जो आपको कहां पे लेके जा रही है, जो आपको 8 में लेके जा रही है, और इसी तरह 10 पे ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है। सो 3,8 अब आप इनके ऊपर जो है एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करेंगे। ये जो अब आपने फाइंड कर लिया है 3,8, और अब आप अगर थोड़ी सी रिकॉल करें, ये वही चीज है जिसको हमने फर्स्टली अडॉप्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जब हम एम्प्टी क्लोजर 3,8 पे अप्लाई करेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा वो कैपिटल बी के इक्वल है, तो इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे राइट किया है। सो द वैल्यूज ऑफ कैपिटल बी विल बी 1 2 3 4 6 7 8 that are actually can be visited on applying empty closure on states 3,8। तो इससे हमें बी पे जाएंगे, तो कैपिटल ई पे अगर लेटर ए को रीड करेंगे तो आप कैपिटल बी के अंदर जा सकते हैं। कोई नई स्टेट हमें नहीं मिली फिलहाल। अब हम बी को चेक करेंगे, कैपिटल ई पे जब बी को चेक करेंगे तो सिंपली हमने कैपिटल ई को रिप्लेस किया इसकी वैल्यूज के साथ 1 2 4 5 6 7 10, और इसके ऊपर अब बी को अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो जब इसको चेक किया तो इससे जो हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिली हैं वो एक्चुअल में आफ्टर अप्लाइंग द एम्प्टी क्लोजर, हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स इसमें मिल रही हैं। 1 पे बी को चेक करें, कोई ऑपरेशन नहीं है, 2 पे बी को चेक करें, कोई न्यू स्टेट नहीं है, 4 पे बी को चेक करें तो हमें स्टेट 5 मिल रही है। इसी तरह हम 5 पे चेक करें, बी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, 6 पे बी को चेक करें, कोई ट्रांजिशन नहीं है, 7 पे बी को चेक करें, कोई ट्रांजिशन नहीं है, 10 पे बी को चेक किया तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इट मीन वी हैव ओनली द लेवल 5। अब इस 5 के ऊपर हम एम्प्टी क्लोजर जब अप्लाई किया इस 5 के ऊपर तो हमें क्या क्या मिल सकता है, तो ये ऑलरेडी कहीं पे किसी न किसी प्रोसेस में हम फाइंड कर चुके हैं। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो हमें इससे मिलेगा 1 2 4 5 6 एंड 7 एंड दिस इज द सेट इक्वल टू लेबल कैपिटल सी। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन टेबल में डीएफए की कैपिटल ई पे अगर आप लेटर बी को रीड करें तो आप स्टेट सी में जा सकते हैं। अब इस तरह हमें यहाँ पे ई के ऊपर भी ए बी दोनों लेटर्स यूज कर लिए हैं, कंज्यूम कर लिए हमने, तो तमाम जितनी भी हमें स्टेट्स मिली हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, उनके ऊपर दो दो मूव्स जो है ए बी की दोनों चेक की हैं। अब हमारे पास कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसको हमने विजिट ना किया हो। इसका मतलब है अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसका जो डीएफए फाइनल है वो उसको ड्रा कर सके और उससे पहले उसका टेबल जो है वो देख सके। सो यू कैन सी हियर दिस गिव्स द ट्रांजिशन टेबल dtran फॉर द dtran में द ट्रांजिशन टेबल फॉर द डीएफए ऑफ, ये आप देख सकते हैं ये स्टेट्स है ए बी सी डी ई जो हमने न्यू डिजाइन की है, और करस्पॉन्डिंगली ये लेबल ए और बी है कि कैपिटल ए पे लेटर ए मिलेगा तो आप बी में जाएंगे, ये वही है जिसको हम साथ साथ डिजाइन करते रहे। सो यू कैन मैच all of these entries of A and B regarding to previous slides जैसे जैसे हमने इनको कैलकुलेट किया है। अब इसके ऊपर
इस ट्रांजिशन टेबल के ऊपर इसका जो डीएफए बनाना है वो अब कोई मुश्किल नहीं है, ये ऑलरेडी इस तरह के टास्क हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं। तो कैपिटल ए स्टेट पे आपको लेटर ए मिलेगा तो आप बी में जाएंगे, आप देख सकते हैं कैपिटल ए पे आपको लेटर ए मिलेगा तो आप बी में जाएंगे, और अगर आपको लेटर बी मिलेगा तो आप सी में जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए पे लेटर बी मिलेगा तो आप सी में जाएंगे। सो इसी तरह कैपिटल बी के ऊपर ए बी की ट्रांजिशन, सी के ऊपर डी के ऊपर और ई के ऊपर ए बी, दोनों का लेबल जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपली सक्सेसफुली हमने जो है वो एनएफए को डीएफए के अंदर कन्वर्ट कर दिया है वाया यूजिंग द सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। अब अगर कुछ चीजें हम क्लियर करना चाहें बैक थोड़ा सा जाके तो हमें अब इजी रहेगा। हमने यहाँ पे बात की थी सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम में ऑपरेशन कैसे होता है, कि हम कहते हैं कि एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर, एंड दिस विल बी द ओनली स्टेट इन डी स्टेट्स एंड इट इज अनमार्क, और ये अनमार्क है क्योंकि हमने इसको प्रोसेस नहीं किया। अब हम जो है इसको फर्दर जो है वो प्रोसेस कर सकेंगे। और ये अनमार्क है क्योंकि हम जब कैपिटल ए को फाइंड किया, क्योंकि उसके ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी को विजिट नहीं हमने किया था, तो इसलिए हम उसको अनमार्क कंसीडर कर रहे हैं। जब तक हमारे पास अनमार्क स्टेट रहेगी हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, नई नई स्टेट्स को डिजाइन करते रहेंगे और एक एक स्टेट को लेके हम उसको मार्क करते रहेंगे, और उस हर एक स्टेट पे हर इनपुट लेटर को भी चेक करेंगे। हमने यहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ ए लिखा है। ईच इनपुट सिंबल ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट के अल्फाबेट में जिस तरह दो सिंबल थे हमारे पास ए कॉमा बी, हम उनको चेक करते रहेंगे वन बाय वन। और इस प्रोसेस को भी आपके सामने हमने चेक किया। मूव टी कॉमा ए, टी रिप्रेजेंट करता था सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ एनएफए। हम पहले मूव अप्लाई करते थे और जो रिजल्टिंग स्टेट्स हमें मिलती थी उसके ऊपर फिर हम एम्प्टी क्लोजर जो है उसको अप्लाई करते थे। तो इस वे के अंदर जो हमें स्टेट मिलती थी डीएफए की उसको हम अनमार्क कंसीडर करते थे, हम एज ए यूज को लिखते थे। और अगर हमारे पास जो ये नई स्टेट मिलती थी अगर वो डी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं थी तो फिर हम क्या करते थे, इसको अपनी डी स्टेट्स के अंदर ऐड करते थे एज एन अनमार्क स्टेट टू डी स्टेट्स। और अगर ये ऑलरेडी स्टेट्स जो है वो मौजूद है तो फिर हम क्या करते थे, हम बता देते थे कि इस पार्टिकुलर स्टेट्स पे जब लेटर ए रीड करेंगे या कोई भी बी लेटर रीड करेंगे तो आप जो है ये अनमार्क स्टेट जो है इसमें जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनिशियल में आपके लिए ये काफी टफ था कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये किस तरह से एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। लेकिन अब बाय यूजिंग एन एग्जांपल अब आपको क्लियर है कि किस तरह से कंप्लीटली ये प्रोसेस जो है सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हमने इसके साथ कुछ बात यहाँ पे भी की थी। अब आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि डीएफए को सिमुलेट कैसे करते हैं। खैर ये तो सिंपल था, लेकिन एक बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो हमने ये कहा था कि ये एम्प्टी क्लोजर ऑफ एस हम बनाते हैं, एम्प्टी क्लोजर ऑफ टी को फाइंड करते हैं और मूव ऑफ टी कॉमा ए। तो अब एक एक चीज जो है वो आपको क्लियर हो चुकी है कि एम्प्टी क्लोजर ऑफ एस क्या है। सेट ऑफ एनएफए स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम एनएफए स्टेट एस ऑन एम्प्टी ट्रांजिशन अलोन, कि एम्प्टी को यूज करते हुए जो जो स्टेट्स आप विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह एम्प्टी क्लोजर ऑफ टी, set of NFA states reachable from some NFA state S in set T on empty transition alone, जिसमें फिर हमने बात की थी कि आपकी एक पार्टिकुलर स्टेट S जो है वो कैपिटल T नंबर ऑफ स्टेट से बिलोंग करती है। मूव T कॉमा ए वो अभी हमने देखा था, एक पार्टिकुलर लेबल A B C वगैरह को हम यहाँ पे रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करते हैं जिन जिन पे हम जा सकते हैं। सो सिंपली ऑल दीज प्रोसेसेस हैव बीन क्लियर टू यू। और इसी तरह इन तीनों चीजों को हमने एल्गोरिथमिक फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह से भी राइट किया था जो कि आप देख सकते हैं, जिनको अब हमने सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे अब फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके बाद इसको अपने कंसेप्ट को और बेहतर करने के लिए जो है वो आप एक और एग्जांपल जो है वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, this is the subset construction algorithm about example number 2. This is the NFA and this is the NFA that we have discussed in our previous lecture. हमने जहाँ पे NFA को कंबाइन किया था वहां पे हमने इसके ऊपर बात की थी कि किस तरह से हम इनको जो है NFA का डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वही NFA है। हमने सिमिलरली इसी तरह इसका रिजल्ट भी आपको बता दिया यहाँ पे कि DFA में कैसे कन्वर्ट हो सकता है और डी स्टेट्स कौन कौन सी हैं जो इसमें बन सकती हैं।
अब इसका प्रोसीजर कैसे अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक एक स्टेट के ऊपर लेटर ए बी को कैसे रीड आउट कर पाएंगे, ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है वो आपने खुद से परफॉर्म कर लेना है, ताकि आप जो है वो मोर कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो सके। इसी तरह एनएफए की डीएफए में कन्वर्जन के लिए एक और एग्जांपल आपको एनएफए की मिल रही है, और खुद से अब आपने इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। तो जब हम इसको फाइनली बना लेंगे, ये स्टेट्स के लेबल के साथ हमने इनको लिखा है, और यहाँ पे इसी इसको हमने यहाँ पे लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसको डिजाइन कर दिया है। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का जो है वो समझ आ गया है। सो दिस इज द एनएफए वर्सेस द डीएफए, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो उसको खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे कि किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट करें विदाउट यूजिंग एनएफए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।